गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे आवर टॉपिक इज टाइम एंड टेंस. ठीक है. सो टाइम एंड टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो टाइम एंड टेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो टाइम एंड टेंस की बात अगर हम करते हैं तो टेंस इज़ व्हाट. टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ द टाइम ऑफ एन एक्शन. मतलब कोई भी काम कब हो रहा है. सपोज कोविड-19 आया था, दैट इज पास्ट. This time COVID-19 has taken a vast root, so that is present. In future it is predicted कि the number of patient would be increased, so that this is predicting future. So tense is divided into three parts, that is present, past and future. जैसे suppose मैंने बोला learn, learnt and will learn. So learn is showing the present one, पढ़ता है. learnt पढ़ लिया. will learn पढ़ेगा. So tenses in on that basis different forms of verb will define the time of an action, and this is called tense. So we are going to elaborate here the topic time and tense. ठीक है. सो टाइम एंड टेंस, फॉर टाइम एंड टेंस वी हैव टाइप्स ऑफ टेंसेस जो हमें पढ़ने हैं. हियर आई एम गोइंग टू टेल यू दैट टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेंसेस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ एरर, बिकॉज इस पार्ट से एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एरर पूछी जाती है. सो टुडे आई विल कवर प्रेजेंट वन, and in next video I will cover it past one, and in next video I'll cover future tense. So today first of all we will discuss types of tenses. So when we are talking about types of tenses, so there are three types of tenses: present, past and future. I have already told you in the previous one. ठीक है. अब here tenses are further subdivided in four categories, that is indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. You can see here. ठीक है. indefinite is showing the usual habits, है ना. indefinite is showing the usual habit and the tenses, ऐसे tenses जो हमारे क्या हो, आदत शो कर रहे हो. रोज़ जाता है, रोज़ खाता है, that is all about a particular habit, that is called indefinite. ठीक है. so here verb की first form is normally given as a preference. और एक्सेप्टिंग पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है. इसके अलावा विल सी इन प्रेजेंट फ्यूचर विल ऑलवेज टेक V1, मतलब SCIS, दैट इज़ अनदर थिंग, बट हम V1 लेते हैं नॉर्मली. नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस इज शोइंग, आप खुद ही देख रहे हो, कंटिन्यूअस कोई भी काम लगातार हो रहा है कंटिन्यूएशन में. समबडी सिंगिंग, ING लग गया. सो वर्ब की ING फॉर्म इज द मेन verb की first ING form is the thing which is found in continuous one. So just remember, continuous is showing continuation, and here we will take ING form. Third is perfect. perfect is showing V3, verb की थर्ड फॉर्म. perfect में हमारा कोई भी काम perfection से हो रहा है. actually perfect tense is all about what? perfect tense is a tense which shows something has been done अभी just, है ना, थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, दैट विल शोज समथिंग परफेक्ट, मतलब परफेक्शन शो कर रहा है, काम परफेक्शन के हुआ है. सो वेयर देयर इज अ परफेक्ट टेंस यू विल ऑलवेज टेक V3. नॉर्मली हमें V3 लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है. Next is perfect continuous. Perfect continuous is showing perfection as well as continuation. Very important one. Perfection and continuation. Perfection की वजह से I have taken been. Continuation की वजह से I have taken since या for. Sorry, I have taken ING. Due to perfect, I have taken been. Due to continuation, I have taken ING. So this means perfection plus continuation or been plus ING. The main important feature of this is time. अगर time mention है तो समझ जाइए the tense is perfect continuous. ठीक है.
एक्चुअली परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस इज अ टेंस विच इज शोइंग दैट समथिंग हैज़ बिगिन इन अ डेफिनिट टाइम, एक टाइम में शुरू हुआ है पास्ट में एंड अभी तक स्टिल वो कंटिन्यूड है. सो दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसमें टाइम आता है. टाइम के बेसिस पे दो चीज़ें आती हैं. वन इज़ सिंस, एक आता है सिंस और एक यूज़ होता है फॉर. ठीक है. तो सिंस कब यूज़ होता है, फॉर कब यूज़ होता है? सिंस इज़ यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए. फॉर इज़ यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए. ठीक है. सो निश्चित समय दैट इज डेफिनेट टाइम. फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी ऐसे टाइम जो हमारे फिक्स है. ठीक है. सपोज 2 o'clock, दिस इज व्हाट? perfect. You can also say anything which is mentioned in clock and calendar which can be mentioned, that will take since. ठीक है. जैसे मैंने बोला today, I have taken today, sorry, I have taken 2 o'clock since. I have taken 2 hour for Monday. Exactly, Monday is a time which is definite. हमने क्या यूज़ किया? since. सिंपल है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंस या फॉर. अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट ये 3 है. यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आई हैव फॉरगॉटन, हैज़ हैव आती है. यहाँ आपकी हैड आएगी और यहाँ आपकी विल या शैल प्लस हैव, विल शैल प्लस हैव. ठीक है. अब अच्छा, वन मोर थिंग, कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, कंटिन्यूअस फ्यूचर में विल शैल प्लस बी. बी क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि विल शैल आर मोडाल्स और मोडाल्स के साथ वी विल ऑलवेज टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड दैट्स वाई हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट में बी लगाना पड़ता है. ठीक है. परफेक्ट, हैज़, हैव, हैड, ऑल दिस इज व्हाट? डिवीजन ऑफ टेंस. ठीक है. होप गाइज यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स जो भी मैंने बताया. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टू दिस, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन explain it in the next video if it is required. Okay. So this is all about this table. If there is any confusion in this table, you can ask. So I'm proceeding to next slide, that is perfect indefinite. देखो perfect present indefinite. What is present indefinite? First of all we would present indefinite, अभी मैंने बोला था कि it shows habit, कुछ ऐसी चीज़ें शो करता है जो डेली बेसिस का हो रहा हो. ठीक है. सो लेट अस सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हियर यू आर सेइंग कि 3 टाइप के रूल हैं. ये रूल मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट हियर. एरर कैसे आती है इसमें ये देख लो. फर्स्ट एरर, वर्ब के साथ SCIS, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कब आती है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ SCIS जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है. ठीक है. तो हम वर्ब के साथ SCIS लेते हैं. और अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन प्लूरल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं. सेम थिंग इज़ डू. यहाँ पर डू के साथ भी यही चीज़ चलेगी. ठीक है. डू यहाँ पर और यहाँ पर डस क्योंकि SCIS लगा है. ठीक है. सपोज शी क्लेम्स, सही है. आगे जो भी हो वॉट एवर में बी द सेंटेंस. बट अगर मैंने लिखा दे रिएक्ट्स, इज इट राइट? मैंने लिखा दे रिएक्ट्स, इज इट राइट? गलत है क्योंकि दे क्या है? थर्ड पर्सन तो है बट इट इज़ प्लूरल. गलत. वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्वाइट इंपॉर्टेंट एरर विच इज़ आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म SCIS. सिंटैक्स के जितने भी रूल्स हैं उनके बेसिस पर पूछ ज़रूर लेते हैं. सो जस्ट रिमेंबर दिस वन. ठीक है.
जस्ट सी योर सेंटेंस, सी योर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटर होगी वर्ब के साथ एस और ई एस। ठीक है, सो दैट इज़ ओके, ये तो बात सही है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर जो पूछी जाती है वो क्या होती है, डू और डज, इनके साथ वी विल ऑलवेज टेक V1। एरर में क्या कर देते हैं, दे विल गिव यू वर्ब के साथ एस और एस, दैट इज़ रॉन्ग, गलत है। वाई, ऑलरेडी यहाँ पर डज यूज़ है, ऑलरेडी यहाँ डू डज लगा हुआ है, ये ज़रूरत नहीं है। वी विल ऑलवेज टेक V1। जैसे सपोज शी डज नॉट wants to help, is it right? wants नहीं होगा, क्यों, क्योंकि she है, does यूज़ है, तो not है, तो wants यहाँ कैसे आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है कि डू डस के साथ हमेशा हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, फर्स्ट फॉर्म लेनी है। वी ओके, सो डू डस के साथ वी विल टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो ये तीन चीज़ें हैं जो यहाँ से हमारी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अभी देखो रूल नंबर 1, एवरी डे, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ऑफन, नॉर्मली, जनरली, एवरी नाउ देन, ये जितने भी वर्ड्स मेंशन हैं, दीज वर्ड ऑलवेज टेक व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट विद देम। जैसे लिखा है आई गो फॉर वॉक डेली, सो डेली इज शोइंग दैट दिस थिंग इज इन रूटीन इवेंट, सो हमने क्या यूज़ किया, डेली। ठीक है, ही ऑफन कम्स लेट, कभी कभार, तो ऑफन इज शोइंग दैट फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूएशन, रूटीन एक शो कर रहा है। अगेन हमने कम्स यूज़ किया क्योंकि ही यूज़ है। दे ऑलवेज कंप्लेन मी अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ हिज, ऑलवेज हमेशा करते हैं, तो ऑल द थिंग्स दैट इज गिविंग द सेंस ऑफ ता है, ती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो दीज आर व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सो दिस दैट इज़ ऑल अबाउट रूल नंबर 1। ईजी है, कोई टफ नहीं है, नथिंग इज़ वेरी सॉरी, नथिंग इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। सो जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट जो मैंने अभी इससे पहले बताया था। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। सो अगर सेंटेंस है कुछ ऐसा लिखा है, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक daily, is it right? I'm going for a walk daily, exactly, क्योंकि ये डेली यूज़ है, तो डेली यूज़ है, दैट इज़ द थिंग कि हमने आई एम गोइंग हटा दिया है, आई गो हो जाए। ठीक है, सो दिस वन इज़ द करेक्ट वन। कभी भी हम आई एम गोइंग फॉर अ वॉक डेली यूज़ होगा तो नहीं यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 2, ये देखो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड कि टुमारो, ये सारे मेंशन होने पर भी हम उसके साथ सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर लेते हैं। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वन, यू कैन जस्ट रिमेंबर। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है आई विल हाईलाइट दैट वन। ठीक है, तो द सेंटेंस विच गिव द सेंस फ्यूचर टेंस एंड कैरीज फ्यूचर इंडिकेटिंग, सो वहाँ पर टुमारो नेक्स्ट यूज़ हो तब भी हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आई गो टू डेली टुमारो, जाता हूँ मैं, कल जाता हूँ, लाइक दिस। सो यहाँ टुमारो टू नाइट यूज़ है, ऐसा शो हो रहा है कि ये फ्यूचर है, बट स्टिल वी कैन यूज़ दिस वन। ठीक है, रूल नंबर 3 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ये क्या है, चलो देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के अलावा अनलेस, अनटिल, व्हेन, ये सारे वर्ड्स हमारे इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इंक्लूडेड रहते हैं। सो यू कैन
ऑल्सो कंसीडर देम एज अ कंडीशनल सेंटेंस जब यूज़ करेंगे. सो इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट होगा तो दूसरे पार्ट में व्हाट शुड बी देयर, विल, शैल, कैन, मे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़ यूज. देखो चलो लेट अस डिस्कस दिस वन. देखो सॉरी, कभी ऐसा हो कि इफ़ के साथ अगर सेंटेंस में एक पार्ट में सिंपल प्रेजेंट हो, देन इन सेकेंड पार्ट what should be used? In the second part we will use will, shall, can, may. ठीक है, प्लस V1. ठीक है. अब देखो what is the thing, बहुत important है. दिस इज़ ऑल अबाउट कंडीशनल सेंटेंस. एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. देयर आर टू क्लॉजेस. प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है? प्रिंसिपल क्लॉज इज़ द क्लॉज जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस हमारा हो रहा है, मतलब वो हमारा सेंटेंस एग्जिस्ट कर रहा है. सबऑर्डिनेट क्लॉज इज़ द क्लॉज ऑन विच सबऑर्डिनेट क्लॉज इज़ द क्लॉज विच सपोर्ट्स द प्रिंसिपल क्लॉज. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होगा कि इन अ सेंटेंस when the sentence is conditional, principal clause should always be taken in simple present. हमेशा simple present में ली जाती है. और जो subordinate clause है वो हमारा किस में बन जाएगा? will shall. मीन्स अगर if के साथ simple present है तो दूसरा पार्ट में will shall can may must प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म होगा. ठीक है. देखो if प्लस सिंपल प्रेजेंट तो दूसरी तरफ will shall can may must. ये हमारे कंडीशनल है. हमारे 3 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं. अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाता तो वुड शुड कुड उधर हो जाएगा. आई डिस्कस इट इन पास्ट, सिंपल पास्ट में. बट नाउ दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट. तो हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें. अच्छा, इसमें एरर कैसे पूछा जाता है? एरर इज़ लाइक यहाँ पर ये क्या करते हैं, दोनों तरफ फ्यूचर टेंस यूज़ कर लेते हैं. कीप इन योर माइंड 2 सेंटेंसेस व्हेन जॉइंड विद अ कंजंक्शन कांट बी यूज्ड इन फ्यूचर. 2 सेंटेंसेस अगर ज्वाइन हैं किसी कंजंक्शन से एंड कंडीशनल है, कभी भी दोनों फ्यूचर में यूज़ नहीं हो सकते. वी नेवर यूज़ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. सपोज देखो, इफ़ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन ए, लेकिन पहले बी देखो. If you will solve this question, I will give you a toffee. Will, 2 will आ गए ना. और मैंने भी क्या कहा कि 2 sentences joined with the conjunction can't be in future tense. ब्रैकेट में बोथ, मतलब बोथ can't be in future tense. ठीक है, दोनों ही हम फ्यूचर टेंस में यूज़ नहीं कर सकते. सो अब हम क्या करें? जिस पार्ट में इफ़ यूज़ है, जस्ट रिमेंबर जिस भी पार्ट में इफ़, अनलेस, अनटिल ये सारा आएगा, दैट पार्ट विल बी इन सिंपल प्रेजेंट. उस पार्ट को हम किस में रख लेंगे? सिंपल प्रेजेंट में. द पार्ट इन विच इफ़, अनटिल, अनलेस इज़ यूज्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल प्रेजेंट. तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही हमें इफ़ दिखा, हमको जैसे ही क्या दिखेगा? इफ़ दिखेगा, वी विल फोकस ऑन 3 कंडीशन. 3 कंडीशन होती हैं. एक सिंपल प्रेजेंट होता है, दूसरा सिंपल पास्ट होता है, और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट. ये कंडीशंस हमको दिखनी चाहिए. अगर सिंपल प्रेजेंट दिखेगा, हमें दूसरी तरफ विल शैल लगाना, और दोनों तरफ विल दिखा, सो हमें तुरंत क्या करना है? एक पार्ट को सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है. द पार्ट विच इज़ इन विच कंटेन्स इफ़, अनटिल और अनलेस, उसे हम सिंपल प्रेजेंट में चेंज कर देंगे. सो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? तो हमारा यहाँ सेंटेंस हो जाएगा बी. इफ़ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू अ टॉफ़ी. सॉल्व, विल गिव.
Now this is the perfect one, that is conditional sentence. Okay, got it? होप यू गॉट इट. और दो कंडीशनल जो नेक्स्ट है वो आई एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज पास्ट. ओके, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. अब देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, दूसरी तरफ यू विल पास. अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तुम पास हो जाओगे. सो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल. जैसे सपोज अगर आप नहीं पढ़ोगे तो यू कांट गेट प्लेसमेंट, यू कांट गेट रिक्रूटमेंट. तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हो गई, सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई, क्योंकि ये नहीं करोगे तो वो नहीं हो पाएगा. ठीक है, दिस इज रूल नंबर 3. नेक्स्ट, रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 में हमारा क्या होगा, रूल नंबर 3, सॉरी, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं. जैसे सपोज यहाँ हेयर देयर यूज़ है, तो हेयर देयर हेयर कम्स गोज़ यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये हमारा क्या शो करेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो करेगा. ठीक है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं उनके लिए भी सचिन रिसीव्स द भारत रत्न, ये भी हमारा क्या शो कर रहा है, रूल नंबर 4. एग्जैक्टली ये हमारा शो करेगा सिंपल प्रेजेंट. वाई, एक्चुअली ऐसा हो गया है कि सचिन भारत रत्न रिसीव कर चुके हैं, पर फिर भी हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वर्ब के साथ एस, दैट इज सिंपल प्रेजेंट. रीज़न क्या है कि वो एक फैक्ट शो कर रहा है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के साथ वी विल ऑलवेज टेक सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, कोटेशंस को डिनोट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली वी विल यूज़ सिंपल प्रेजेंट. अच्छा, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे जो होते हैं ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, एंड दैट्स वाई वेन एवर ये दे आर यूज्ड इन सेंटेंस लाइक होने के सेंस में, तो हमारा वो क्या यूज़ होगा, वो हमारा शो करता है सिंपल प्रेजेंट. जैसे ही इज़ गुड, ही इज़ बैड, ये क्या शो करेगा, ये हमारा शो करेगा सिंपल प्रेजेंट. तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट tense. So now moving forward to the next one, that is present continuous. अब present continuous की बात हमने करी अगर, तो what is present continuous? कंटिन्यूएशन शो करता है. आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट. ईजी है बहुत ज़्यादा, इसमें भी देखने वाली चीज़ें नहीं हैं, बस आपको थोड़ा सा चीज़ें याद रखनी है. कभी भी कोई भी चीज़ क्या हो रहा है कि एक एक्शन हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे आप बता रहे हो जब हम कुछ काम हो रहा है उस टाइम पर चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसको हम प्रेजेंट में उसे हम किस में यूज़ करेंगे, कंटिन्यूअस में. जैसे इट इज़ रेनिंग, आई एम ईटिंग, सो दिस इज शोइंग अ एक्शन विच इज़ हैपनिंग नाउ. ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेरी एक्टिविटीज़. टेम्परेरी एक्टिविटीज़ का क्या है, अब टेम्परेरी एक्टिविटीज़ ऐसी जो भी वही सेम फैक्ट आ रहा है, वही टेम्परेरी एक्टिविटीज़. ये पता है कि ये बहुत देर तक नहीं होंगी. ठीक है, माई अंकल इज़ अराइविंग टमोरो, आई एम गोइंग टू वॉच एन मूवी टू नाइट. ये दो सेंटेंस कंटिन्यूअस में मेंशन है, बट ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस डिनोट कर रहे हैं. जस्ट रिमेंबर दैट. ठीक है, ये देखने में सिंपल, ये देखने में हमारे क्या यूज़ लगते हैं, ये हमारे लगते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बट दिस इज शोइंग विच वन, एग्जैक्टली ये हमारा शो करता है सिंपल प्रेजेंट. माई अंकल इज़ अराइविंग टमोरो है तो ये कंटिन्यूअस, लेकिन ये शो करेगा सिंपल फ्यूचर. ये सिंपल फ्यूचर होगा, शो करने में ये देखने में लग रहा है हमारा कंटिन्यूअस. क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट, इसमें बहुत ज़्यादा बताने वाली चीज़ें नहीं है. नेक्स्ट इज पर्टिकुलर ऑब्स्टिनेट हैबिट. मीन्स ऐसी हैबिट जो इंसान छोड़ नहीं सकता, ज़िद्दी स्वभाव का, जैसे इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी विल यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. जैसे मैंने कहा माई डॉग इज़ वेरी सिली. अभी देखो पीछे मैंने ऑलवेज कब बताया था, प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ हम
कंटिन्यूअस में यूज़ कर रहे हैं ऑलवेज। क्यों? देखो, माई डॉग इज़ वेरी सिली, मेरा डॉग बहुत ही बेवकूफ़ है, बहुत ही पागल है, हमेशा रोड पर दौड़ता रहता है। तो ये एक ऐसी हैबिट शो कर रहा है जो पर्टिकुलर ऑब्स्टिनेट हैबिट हो, मानता ही नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड वेरी सिली, इसीलिए यहाँ पर बोला गया। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमने यहाँ क्या लगाया है, रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, रनिंग ऑन द रोड, पर्टिकुलर ऑब्स्टिनेट हैबिट। जैसे मैंने बोला, माई डॉग इज़ वेरी सिली, ही इज़ ऑलवेज रनिंग ऑन द रोड। दिस इज़ द कॉल्ड पर्टिकुलर ऑब्स्टिनेट हैबिट। ठीक है, क्लियर? सपोज अगर यहाँ पर एक सेंटेंस ऐसे कुछ हो कि ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड क्राइंग, कंप्लेनिंग एंड क्राइंग, वो हमेशा रोता रहता है और कंप्लेन करता रहता है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये भी अगेन वही शो कर रहा है कि उसकी आदत हो गई, जब देखो तब रोएगा, कंप्लेन करता रहता है। अगर हम इस सेंटेंस को लेके ही ऑलवेज कंप्लेन्स एंड क्राइज, गलत है। ठीक है, यहाँ पर उसकी आदत सी बन गई है इस तरह की, रोते रहने की, चिल्लाते रहने की, कंप्लेन करते रहने की, रोते रहने की। एंड दिस द रीज़न कि वी विल यूज़ दिस वन। तो ऑलवेज के साथ हमेशा हम ये यूज़ नहीं करेंगे। जब पर्टिकुलर ऑब्स्टिनेट हैबिट शो कर रहा होगा तो हम ing मीन्स कंटिन्यूअस का यूज़ कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर ऑब्स्टिनेट हैबिट। नेक्स्ट, चेंजेस टेक्स प्लेस। चेंजेस जो भी हो रहे होंगे, सिंगिंग अ लेसन, वो नॉर्मल है कि कोई भी चीज़, जैसे कहते हैं ना कि पेट्रोल, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो प्राइसेस ऑफ पेट्रोल जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो वो चेंजेस शो कर रहा है। तो कोई भी चीज़ें अगर चेंजेस शो करेंगी तो वहाँ पर वी विल टेक व्हाट, हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल टेक चेंजेस हो रहा होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि चीज़ें हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, परफेक्ट, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वन कि क्या इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो हियर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, ये तो आपको पता है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हैज़ हैव के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म के एरर आ जाती है। जैसे आई हैव वेंट, गलत है, क्या होगा, गॉन होगा। ठीक है, वेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। सो ये एक एरर है जो पूछी जाती है। सो परफेक्ट, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि परफेक्ट वो टेंस है जो शो कर रहा है कि अभी कोई काम हुआ है ना, रिसेंटली वो कंप्लीट हुआ है। आई हैव टॉट इंग्लिश टू मेनी स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाई है, पढ़ा चुका हूँ। दैट इज़ द सेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिमाग समझने वाली चीज़ है वो क्या है कि इसमें एरर किस बेस पर आती है। एरर किस बेस पर आती है, जो मैंने यहाँ मेंशन करा है। जो काम जो इमीडिएट पास्ट शो कर रहे हो, रिसेंट इवेंट शो कर रहे हो, जैसे जस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पर क्या शो करेगा, सिंपल, सॉरी पास्ट परफेक्ट शो, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट शो करेगा, माय मिस्टेक, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट शो करेगा। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट टू वर्क। ठीक है, अभी जस्ट अभी गया है, जस्ट अभी बोलते हो ना, सो दिस इज़ व्हाट, जस्ट गॉन तो हैज़ हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इज शोइंग प्रेजेंट परफेक्ट। जस्ट है, रिसेंटली है ना, ऐसे वर्ड्स जो हैं जो ये शो कर रहे हैं कि अभी काम थोड़ी देर में हुआ है पहले, सो वो हम हमेशा उनके साथ क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, वन मोर थिंग, इस बात को याद रखना, जस्ट नाउ और जस्ट हमें सेम लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट नाउ और जस्ट सेम नहीं है। अगर हम जस्ट नाउ की बात करें तो जस्ट नाउ हमेशा अपने साथ सिंपल पास्ट लेगा। जैसे सपोज यहाँ होता, इट हैज़ जस्ट नाउ स्ट्रक 10,
या तो जस्ट नाउ सबसे पीछे हो जाता है. इट हैज़ स्ट्रक 10 जस्ट नाउ, तो इट स्ट्रक 10 जस्ट नाउ होगा. ठीक है. ही रीच्ड हियर जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ यूज़ है तो रीच्ड हो जाएगा. ठीक है, सिंपल पास्ट. सो दिस इज़ व्हाट प्रेजेंट परफेक्ट है. लेकिन जस्ट नाउ होने पर ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लेगा, क्या लेगा? सिंपल पास्ट. ठीक है. टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन ये सेम है, लेकिन यहाँ ऐसी चीज़ें ना, क्वेश्चनिंग मतलब टाइमिंग हमें पता नहीं है. हैव यू एवर विजिट, ऐसे बोलते हैं ना, हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली, कभी गए हो? सो यू डोंट नो अबाउट द टाइम, you don't know that that is definite or not, you are not sure about that. In this case हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेफरेंस देंगे. दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें ये जो मैंने फैक्ट बताया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस फैक्ट से रिलेटेड एरर बहुत आती हैं. एंड सेकेंड फैक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म. दीज टू फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन दैट बेसिस एरर्स आर यूजुअली आस्क्ड. ओके, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. So now moving to the next slide, that is present perfect continuous. Very easy one. Only one error is one error based on that one is asked. First is what? जैसे मैंने यहाँ लिखा है, he is teaching me for 4 hours. For 4 hours. Continuous प्लस टाइम होगा अगर कभी भी सेंटेंस में, तो आप उसे तुरंत किस में चेंज कर दोगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ही इज़ टीचिंग मी फॉर 4 hours गलत है. ही हैज़ बीन टीचिंग मी फॉर 4 hours, वो मुझे 4 घंटे से पढ़ा रहा है. सो वी हैव चेंज्ड दैट कंटिन्यूअस plus time in present perfect continuous. So he has been teaching me for 4 hours. वो मुझे कितनी देर से पढ़ा रहा है? 4 घंटे से पढ़ा रहा है. So this is the concept of present perfect continuous. He has been teaching me for 4 hours. Exactly. So this is the concept of present perfect continuous. एक ये एरर पूछता है. सेकेंड एरर since या for के बेसिस पे रहता है. ठीक है. 4 hours है, since दे देगा. Just remember this one. These two errors are asked on the basis of present perfect continuous. Present perfect continuous में I have told you 3 चीज़ें होती हैं. सॉरी, perfect और continuous, और इसके साथ यहाँ मैंने टाइम नहीं लिखा है, तो टाइम के वजह से यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं since या for. सो हेयर वी विल टेक सिंस या फॉर. हम क्या यूज़ कर लेंगे? सिंस या फॉर. तो सिंस किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. और फॉर किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए. सिंस किसके लिए? निश्चित समय के लिए. फॉर किसके लिए? अनिश्चित समय के लिए. ही हैज़ बीन टीचिंग मी फॉर 4 hours. यहाँ पर इज़ नहीं होगा. वाई? बिकॉज सेंटेंस इज नॉट शोइंग कंटिन्यूअस, इट इज शोइंग परफेक्शन प्लस कंटिन्यूएशन, एंड दैट्स द रीज़न ही हैज़ बीन टीचिंग मी फॉर 4 hours इज द राइट आंसर. कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी तक हो रहा है, स्टिल कंटिन्यूअस है. अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज़ द थिंग जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है. देयर इज़ नो कन्फ्यूजन आई थिंक. सो दिस इज़ व्हाट प्रेजेंट परफेक्ट continuous. Hope you guys all understand the concept of these tenses. Any confusion, any doubt, just tell me in the comment section. Next is the past one. जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो पास्ट पे होगी, एंड दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. बहुत इम्पॉर्टेंट है पास्ट से. पास्ट से हमारा पास्ट परफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल पास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दीज 2 टेंसेज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ एरर्स, क्योंकि इनसे एरर्स बहुत पूछी जाती हैं. Mostly errors are asked from that one, and also that conditional sentence from simple past. So just view this one, and any confusion comment, just mention in comment section. And also do one thing, subscribe this, so that whenever I'm going to
post any video related to the tenses next video whenever I'll upload, because it depends on time. जब मुझे time मिलता है I'll post that one. So whenever when you have subscribed to my channel, so you will get notification about that कि हाँ this video has been posted. So just subscribe also. It also motivate me all, ठीक है, it also motivate me कि हाँ yes students are quite interested in knowing these topics. Okay, so hope guys you enjoyed the sessions. Thank you. Do like and share if you have enjoyed the session. Thank you. Will be in the next I'll meet you in the next session with the same topic, tense, but that time the tense will be past. Okay, thank you. Bye bye.